opened the first chapter. A triumph of surgery. So here, the first chapter, a triumph of surgery. Before we begin, let's read out what is in this whole thing. Here it is given, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Now here, we all love different kinds of animals. Some have pets at their home. Okay, किसी के घर पे ही pets है, different types of pets are there. Now when the pets are there, sometimes we love them so much that we overfeed them. Overfeed यानी बहुत ज्यादा लाड प्यार करते तो ज्यादा खाना दे देते उसको. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिस्ट्रेस है वो कैसी मिस्ट्रेस है, वो थोड़ी रिच है. शी इज रिच. As she is rich, you can think about it, that what she is going to do, she is going to love that dog very much, and in doing so the dog becomes seriously ill. Okay, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है. And the mistress is consulting a veterinary surgeon. Veterinary surgeon means a doctor, or doctor who treats animals. Okay, all kinds of birds, animals, creatures, उसके लिए एक डॉक्टर होता है. वो डॉक्टर को क्या कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर. अब यहाँ पे ऑपरेशन करने की जरूरत है. कई बार होता है कुछ एनिमल्स जब दे आर इन प्रॉब्लम, समटाइम्स द डॉक्टर हैज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन. एंड देयर हैव बीन, हमने जैसे हमारे एसएस के अंदर ही 5th चैप्टर जो है उसके अंदर है, हाउ द डॉक्टर्स ऑफ veterinary doctors used to perform surgeries on animals also and treat them if they were sick also. Okay, so here we are going to study about it. Is this doctor doing an operation or not? क्या ये एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, क्या वो डॉग जो है वो रिकवर होता है या नहीं. So we are going to study about it line by line. Okay, now before here we look, there are some questions that is given here in the first starting में ही हमें कुछ questions दे दिए. Read and find out. These are some of the questions that we are going to find out. Why is Mrs. Fumfery worried about Tricky? So who is the mistress here? What is the name of the mistress? Fumfery. Okay. Tricky. Who is Tricky here? Tricky is the dog. Okay. दो चीज हमें पता चल गया. एक डॉग का नाम क्या है, ट्रिकी, एंड द नेम ऑफ द मिस्ट्रेस इज Fumfery. What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer in this story? ठीक है, ये I का आप आंसर मुझे दोगे. Now let's begin. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the streets with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat. Hugely fat. You understand the word hugely fat? आपको पता है कि hugely fat क्या होता है? बहुत ज्यादा fat होना. ठीक है, और यहाँ पे next word is like a bolted sausage. Bolted sausage का मतलब क्या है? It is swollen up. हमारा शरीर जब फूल जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, bolted sausage, to be oversized.
एंड लेग एट ईच कॉर्नर, मीन्स इफ यू सी द डॉग, वो पैर, उसके छोटे छोटे पैर, पर उसका जो बॉडी है वो कैसा हुआ है, फूला हुआ है, बहुत ज्यादा फूला हुआ है. हिज आईज ब्लड शॉट. ब्लड शॉट का मतलब क्या है, आंखों के अंदर रेडनेस हो जाना. वो कब होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं तब. ठीक है. उसके बाद एंड रूमी. रूमी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सोते नहीं हैं बहुत देर, इफ वी स्टे अवेक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस, समटाइम्स देयर इज वाटर इन आवर आईज. ओके, सो दैट वाटरी काइंड ऑफ आइस और कंजक्टिव आइस होते हैं, पता है, हैव यू कम अक्रॉस दिस कंजक्टिव आइस. तो जब वो कंजक्टिव आइस होते हैं तो आइस आर रेड इन कलर एंड दे आर ऑलवेज वाटरी. तो यहाँ पे his eyes were bloodshot, that means red in color, some red spots could be seen in the eyes, and roomy, that is his eyes were watery. And what did he do, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Means जो tongue था, if you have seen dogs, their tongue is always out, है ना, but his tongue here it was lazily lying like that, के एक ऐसे हैंग कर दिया वैसा उसको लग रहा, ऐसा दिख रहा था. Yes, Hardik Patil, what happened? Hardik Patil. Yes. क्या हुआ बोलो. कुछ नहीं सर. तो ध्यान दो. Okay, now lolled from his jaws. Mrs. Pomfrey hastened to explain. Hasten का मतलब क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बोलना. उसने उन्होंने she did not waste her time. She started speaking very fast. She started explaining. He was so listless. Listless का मतलब बिना एनर्जी का, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं. किसमें एनर्जी नहीं है, या ही कौन है यहाँ पे, he is the dog. Okay, Tricky. So Mrs. Pomfrey is talking about whom, Tricky. Whom, to whom she is telling, she is telling to the, ये जो आई है ना उसको बता रहे. अब ये आई कौन है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे वो जो आई है उनको बता रहे, मे बी दैट कैन बी द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. ये जिन्होंने ये बुक लिखा है मे बी वो हो सकता है. तो हम देखते कि क्या है करके. सो उन्होंने क्या बोला, मिस्टर हेरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. तो किसके बारे, किसको बोल रहे हैं, मिस्टर हेरियट को. कौन बोल रही है, मिसेस फम्फरी इज टॉकिंग टू मिस्टर हेरियट एंड टेलिंग हिम कि जो ये डॉग है वो डॉग में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, देयर इज नो एनर्जी इन दिस डॉग. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन. ये पता है मॉल न्यूट्रिशियस, when you don't have or a particular person is lacking from proper nutrition, उसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. ओके, सो उस वो मिसेस फॉम्फरी ऐसा कहती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसको माल न्यूट्रिशन है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. यानी क्या कर रही है, शी इज गिविंग सम एक्स्ट्रा, तो कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा दे रही है, और वो एक्स्ट्रा देने से क्या होगा, उसकी एनर्जी बिल्डअप होगी. जैसे हम लोग 3 टाइम खाते हैं. कब खाते हैं, एक सुबह ब्रेकफास्ट, सेकंड लंच एंड थर्ड डिनर. 3 टाइम खाते हैं, फिर भी हमको भूख लगती है तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रास खाते हैं. अभी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच में कभी कुछ हाथ में आया तो हम लोग वो खा लेते हैं.
ठीक है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं। अब लंच और शाम को जो डिनर होता है उसके बीच में अगर हमको कुछ भी खाने को मिला, एक बार क्या, दो बार, तीन बार, कुछ भी मिलेगा, हम लोग खाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो दैट इज नोन एज सम एक्स्ट्रास। सो मिसेस पॉम्फरी इज गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास। नाउ व्हाट इज बीन गिवन टू मिसेस मिसेस पॉम्फरी, ट्रिकी को क्या क्या देती है? तो क्या देती है? सम मॉल्ट। मॉल्ट क्या होता है? मॉल्ट इज अ टाइप ऑफ अ बार्ली और ग्रेन्स दैट आर यूज्ड टू सोक इन वाटर। उसको सोक किया जाता है पानी के अंदर, फिर उसको ड्राई करते हैं और वो हम लोग वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, या तो बीर बनाने के लिए, ठीक है, विनेगर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो माल्ट, मॉल्ट, मॉल्ट देते हैं। कोड लिवर ऑयल। कोल्ड लिवर ऑयल पता है क्या है? इट्स अ विटामिन टैबलेट जैसा मिलता है। इट इज येलोइश इन कलर। हमें वो फिश में से मिलता है। ओके, एंड इट इज रिच इन विटामिन डी एंड ए। तो ये तो ह्यूमन बींग्स को हम लोग देते हैं, पर यहाँ पे किसको दे रहे? डॉग को। क्यों? ताकि उसकी एनर्जी चली जाती है बार बार, इसलिए उसकी एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए क्या देते हैं? मॉल्ट और कोड लिवर ऑयल। और क्या देते हैं? एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। हमें अभी नहीं मिलता है, यहाँ पे किसको मिल रहा है? कुत्ते को। कुत्ते को एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। क्या क्या मिल रहा है देखो, उसकी फैसिलिटीज देखो। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। और क्या बोल रहे हैं? शी इज टेलिंग दैट द डॉग इज बीन गिवन मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। ये एड ऑन है। एड ऑन यानी उसको खाना तो उसको टाइम पे मिलता है, पर उसके साथ साथ ये भी उसको दिया जाता है। क्यों? ताकि वो रात को आराम से सो सके। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं देते। कौन नहीं देता है? मिसेस पॉम्फरी इससे ज्यादा कुछ देती नहीं है। तो वो जो कार में था, या यहाँ पे मिस्टर हेरियट ने उसको पूछा, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स दैट आई टोल्ड यू टू? मैंने आपको जो कहा वो आपने कट डाउन किया? मैंने क्या कहा था? स्वीट्स को कट डाउन करने के लिए, वो आपने किया? सो डू यू थिंक हु इज आई नाउ? आपको पता चला हु इज आई? कौन है आई? ऑथर? इज द ऑथर और मिस्टर हेरियट? यस, मिस्टर हेरियट इज द ऑथर एंड ही इज आई। ओके, ही इज द वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, वही वेटनरी डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही यहाँ पे पूछा है कि आपने, मैंने जो आपको कहा था वो आपने किया? तो उनका जवाब देखो। हो, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया। मैंने किया, थोड़े टाइम तक किया, पर मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया? मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। आई चेंज, रिलेंट मीन्स टू चेंज द माइंड। ही डस लव क्रीम केक्स। क्या क्या पसंद है इसको? क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। ये दो चीज इसे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं कभी उससे मना नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बेयर टू refuse हिम। मैं मना ही नहीं कर सकती। गेटिंग इट? I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. क्या था उसका एक गुना? कौन सा था? That was greed, लालच। He had never been known to refuse food. उसको खाने के लिए किसी ने आज तक मना नहीं किया है। खाना चाहिए, जरूर मिलेगा। You will definitely get food. If he asked for food, no one used to refuse him. Yes, he he would tackle a meal at any hour of the day. Tackle a meal, कभी भी उसको खाना दो।
वो उसको खा लेगा, कभी भी दो, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात हो या दिन हो, कभी भी आप उसको खाना दोगे, कभी मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. ही इज रेडी, ऑलवेज रेडी. And I wondered about all things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. तो यहाँ पे वो मेंशन ये सोच रहे कि इसने क्या नहीं किया, इसको जो बोला था वो उसने किया ही नहीं, उसके साथ साथ ये सब कुछ एड ऑन खाना भी दे रही है. चलो मेरे को दूसरा पूछने दो. एंड देन ही इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसको एक्सरसाइज देते हो? देखो उसका जवाब क्या है मिसेस फॉम्फरी का. वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी. यानी वो छोटे छोटे, एक छोटा वॉक यानी मे बी घर के अंदर इधर से उधर जाना, वो सब वो करता है. बट हॉडकिंग द गार्डनर, गार्डनर का नाम क्या है? हॉडकिंग. और ये जो गार्डनर है, हैज बीन डाउन विथ लिम्बोग. ये क्या एक डिजीज है जो घुटने, फॉर एग्जाम्पल फॉर द नीज, देर इज ट्रबल, okay, in the muscles and in the back joints, okay, so that if there is pain in the muscles and the joints of the lower back, पीछे की तरफ lower back में थोड़ा पेन होता है, उसको लेम्बेगो कहते हैं. ठीक है. तो मिस्टर हॉडकिन जो गार्डनर था, उसको अपने मसल्स में पेन था, इसीलिए ही देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. यानी रिंग थ्रो करते हैं और वो डॉग भागता है वो लेने के लिए, ये वाला एक्सरसाइज हो नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो गार्डनर है उसको अपने लोअर बैक में पेन है, इसलिए वो करता नहीं है. पर वो जरूर छोटे छोटे स्टेप्स लेता है. एंड वी गो फॉर अ वॉक, दैट इज वेरी स्मॉल स्टेप्स, एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट टू टेल. वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रही है कि ऐसा है करके. नेक्स्ट, I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब डॉक्टर ने क्या कहा? वेटनरी डॉक्टर ने, द वेटनरी डॉक्टर टोल्ड दैट इफ यू डोंट कट डाउन हिज फूड, उसका जो खाना है, आप इतना ज्यादा खाना देते हो, वो कट डाउन नहीं करोगे और उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू बी इल. वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार होने वाला है. तो ये एक वार्निंग की तरह उसने, डॉक्टर हेरियोट जो थे उन्होंने वार्निंग की तरह उनको कह दिया. ओके. नाउ यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. क्या करना है आपको? हार्डन, यू हैव टू मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग. ओके. यू हैव टू बी नॉट सॉफ्ट इनफ. एंड देन पुट हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको उसको रखना पड़ेगा. मिसेस पॉम्फ्री व्रंग हर हैंड्स. व्रंग यानी क्या है? ऐसे फोल्ड करना. और हम लोग कपड़े निचोड़ते हैं, हैव यू, निचोड़ते हैं तो कैसे करते? स्क्वीज करते हैं ना. तो स्क्वीज करते तो उसमें से कैसे पानी निकलता है, तो उसने अपने हाथों को कैसे कर दिया? फोल्ड कर दिया और टाइटली स्क्वीज करना किया. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो बहुत ही सही है, बट उनको क्या लगता है ये काम जो है कि उसको खाना मना करना, उसके साथ एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, वो हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नॉट टू गिव हिम फूड. तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. नहीं, फूड के मामले में वो कभी ये नहीं करेंगे, नहीं फूड तो देना ही है. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं. एंड
She set off head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. उन्होंने ये बोल के अपना सिर नीचे डाल के वो चलने लगे. ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी ये क्या करने वाली है, इस ये डॉग को स्ट्रिक्ट डाइट पे डाल देगी, और जैसे स्ट्रिक्ट डाइट पे ये डॉग को डाल देगी, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे. ओके, सो दिस वाज व्हाट ही डिड. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweeted coat. He had a whole uh, uh, wardrobe of these coats. Tottering का मतलब क्या है? Unsteadily मूव करना. जब जो एज्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग जैसे चलते वैसे नहीं चल पाते हैं. उनको क्या करते, वो क्या करते हैं, एक थोड़ा इधर झुक जाते हैं, फिर चलते तो थोड़ा इधर झुक जाते हैं. तो दैट इज नोन एज टॉटरिंग. ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, ओके, इन अ स्टेडी मैनर along with his tweeted coat. अब ये डॉग को some of them have the habit of making clothes for the dogs and cats को उन लोग कपड़े पहनाते हैं. Here the dog was given a coat, and this coat was made up of wool. So the coat he was wearing, okay, along with his little tweeded coat, he had a whole wardrobe of these coats. क्या है? एक कोट नहीं है, क्या है? वार्डरोब है उसका, जहां पे बहुत सारे कोट्स हैं. तो आप समझ सकते हो कि उसकी सिचुएशन कैसा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ. फॉर कोल्ड वेदर फॉर कोल्ड वेदर ही हैड वुलन क्लॉथ्स, अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. देखो, बारिश के लिए उसके पास रेन कोट भी है. He struggled on drooping on his harness. Drooping यानी आपने देखा होगा, there are many animals, they have belt around their waist, या गले पे बेल्ट होता है पकड़ने के लिए, ठीक है. The belt is there. So drooping का मतलब क्या होता है? Hang downwards, नीचे की तरफ. और harness is that belt that is having. He struggled on his drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard it from Famfari. उन्होंने कह दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े दिन में ही, तुरंत ही मिसेस फॉम्फरी है, उनका कॉल तुरंत ही आएगा मेरे को, क्योंकि उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था ये बहुत ज्यादा गंभीर है और ये बहुत ज्यादा इल है. सो दिस वॉज वॉट इट वॉज गोइंग ऑन. The expected call. क्यों expected call? Because he knew that the dog was ill. और अगर ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी हालत खराब होगी. इसलिए ही वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कॉल कि मिसिस फॉम्फरी का कॉल मुझे आएगा. विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में उनका कॉल आया. मिसिस फॉम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट यानी बहुत ज्यादा वरीड होना और बहुत ज्यादा अपसेट थी. शी वॉज मोर अपसेट एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट द डॉग कि क्या होगा मेरे डॉग को. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. कुछ भी नहीं खा रही थी. refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. क्या कर रहे थे? ट्रिकी was vomiting. थोड़े थोड़े अमाउंट में वो वॉमिट करता था, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ही इज सिक. द डॉग वॉज सिक बिकॉज ही वॉज वॉमिटिंग, ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, एंड ही वॉज नॉट इवन ईटिंग हिज फेवरेट डिश. उसको जब उसका जो फेवरेट डिश था वो भी वो नहीं खा रहा था. He spent all his time lying on the rug panting. Now वो अपने एक कारपेट जो है उस कारपेट पे ही लेटा रहता था. और पेंटिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट ब्रीथ्स. हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग भाग के आते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अभी आराम से जो सांसें लेते हैं वैसे नहीं, वो हाफने लगते हम लोग. तो वो दैट वाज सीन इन द डॉग. वो भागता भी नहीं था फिर भी वो हाफ रहा था. सो ही वाज हैविंग, he could not take, what we can say, he could not take breathe properly. That is why he was
painting. Didn't want to go for walks के लिए जाता नहीं था. Didn't want to do anything, उसको कुछ भी करना नहीं था. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for a fortnight and to be kept under observation. उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ऑलरेडी अपना प्लान बना के रखा था. किसने प्लान बनाया था? मिस्टर हेरियट ने. हेरियट ने ऑलरेडी प्लान किया था कि ये डॉग को क्या करना है. अगर मैं यानी हेरियट मिसिस फम्फरी से दूर लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेंगे फोर्टनाइट के लिए. फोर्टनाइट का मतलब है 14 डेज या 2 वीक्स हम लोग बोल सकते हैं. उतने दिन के लिए दूर रखेंगे तो ही ये डॉग अपनी जिंदगी में वापस आ पाएगा, या तो इसका इलनेस बढ़ते बढ़ते जाके ये मर जाएगा. तो इसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान था कि इसको हॉस्पिटलाइज करे, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा. द पुअर लेडी स्वून्ड. स्वून्ड का मतलब क्या है? फेंट हो जाना. जैसे इन्होंने कहा कि इसको तो हॉस्पिटल में करना पड़ेगा, तो वो जैसा बेहोश हो गई वैसा उसका वो बेहोश जैसा हो गई थी. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. यहाँ पे पाइन का मतलब क्या है? उसको बहुत जो फम्फरी थी उनको तो पक्का मालूम था कि अगर ये डॉग ट्रिकी क्या हो जाएगा, हर दिन उसकी मिस्ट्रेस को नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा? ही वुड पाइन. ही वुड पाइन का मतलब है मेंटली और फिजिकली डिक्लाइन हो जाना. यानी वो सोचता है ना, अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग, किसी का हेल्थ खराब हो जाता है, और ये डॉग्स में ये होता ही है. अगर आपके पास, हमारे पास, कोई किसी के पास भी एक डॉग होगा, वो हम लोग हर दिन उसके साथ खेलते हैं और एक दिन उसको छोड़ के जाएंगे तो डॉग एकदम शांत हो जाता है, वो रोता भी है लिटरली. तो यहाँ पे ही वॉज टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइज्ड. अब कौन से हॉस्पिटल में? वेटनरी हॉस्पिटल में. ठीक है, कोई दूसरे हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. तो ये सुन के ही वो एकदम, वो तो बेहोश जैसा हो गई थी. एंड हियर she believed, she was so sure that he would pine, यानी उसको बुरा लगेगा और शायद वो मर भी जाएगा. और क्यों मरेगा? बिकॉज he did not see her every day, क्योंकि उसको देखने को नहीं मिलेगा इसीलिए. बट I took a firm line. उन्होंने, किसने फर्म लाइन लिया? डॉक्टर ने. Tricky was very ill. Doctor was very firm. He knew that the dog was very ill. This was the only way to save him. ये ही एक तरीका था जिससे हम वो डॉग को बचा सकते थे. In fact, I thought it best to take him without delay and take him without delay and followed by Mrs. Fumfrey's wailings. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनको, डॉक्टर को पता था कि ये मैं इसको बहुत देर तक नहीं पकड़ के रख सकता हूँ, इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी ये डिसीजन लेना है. और वो फर्म थे, नो यू कैन नॉट कम, आई हैव टू टेक द डॉग विथ मी एंड ही हैज टू बी ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल एटलीस्ट फॉर हाउ मेनी डेज? 14 days. At least for fortnight he has to be in hospitalized. That had to be done. एंड मिसेस पम्परी वेलिंग करने लगी. वेलिंग करने लगी का मतलब क्या है? वो रोने लग गई. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. अरे मेरे कुत्ते को कहाँ 14 दिन तक आप मेरे से दूर कर दोगे? ऐसा वेलिंग करने लगी. तो उसके पहले ही उन्होंने वो डिसीजन कर लिया था. आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट. वो क्या करने लगे? कार में चलने लगे, वो डॉग को लेते हुए, वो ब्लैंकेट में व्रैप करके डॉग को लेके चलने लगे. अगर वो वहां पे रुकेंगे तो ये रोती रहेगी और कुत्ते को जाने को भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो दिस वाज द सिनेरियो. द एंटायर स्टाफ. अब देखो, उनके घर पे स्टाफ है. स्टाफ कौन कौन से स्टाफ हो सकता है?
केयर टेकर्स, घर के अंदर केयर टेकर्स होते हैं ना, वो लोग की बात कर रहे हैं। वॉचमैन होता है, सर्वेंट्स होते हैं, अदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, यानी उन लोग खड़े हो गए। एंड मेड्स ने क्या किया, मेड्स रश्ड इन, घर के अंदर भाग गए। अब हमको ऐसा लगेगा क्यों भागे होंगे, चलो देखते हैं। एंड इन एंड आउट, घर के अंदर भी गए और बाहर भी आए। क्या, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, क्या बेड, डे बेड, दिन को सोने के लिए बेड, ठीक है। हिज नाइट बेड, रात को सोने के लिए दूसरा बेड, यानी उसके पास दो बेड है, एक दिन को सोने के लिए, एक रात को सोने के लिए। फेवरेट कुशन, कुशन क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है। जो हम लोग टेडी बेयर सब कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट ही होते हैं ना, तो वैसा एक कुशन भी है, तो उसका एक फेवरेट कुशन भी है। उसके बाद उसको खेलने के लिए उसके टॉयस, रबर रिंग्स, ये रबर रिंग्स क्या है, रिंग है ना, फेंकते हैं, तो वो जो गार्डनर था, गार्डनर ऐसा फेंकता है और ये जाके पकड़ के आता है, तो वो रबर रिंग्स। अब देखो, ब्रेकफास्ट बाउल, ब्रेकफास्ट के लिए एक बाउल, लंच के लिए एक बाउल और सप्पर के लिए एक बाउल। देखो, हम लोग सब एक ही थाली में ब्रेकफास्ट भी खाते हैं और उसी थाली में लंच डिनर सब कुछ उसी थाली में खाएंगे। पर यहाँ पे इसका डॉग का देखो रवैया, ब्रेकफास्ट के लिए एक अलग बाउल, लंच के लिए एक अलग बाउल और सप्पर के लिए अलग। तो आप सोच सकते हो कि कितना ऐश और आराम से ये डॉग रहता था, ठीक है। Realizing that my car would never hold all that stuff, I started to drive. इसको पता चल गया डॉक्टर को, अरे ये तो कितना सारा सामान लेके आया, जल्दी जल्दी मेरे को गाड़ी स्टार्ट करके जाना पड़ेगा। और वो सारा गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगे। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, यहाँ पे क्या, वो रोने लग गई और ऐसे, अरे मेरे कुत्ते को लेके गए, मेरे ट्रिकी को लेके चले गए, ऐसा। threw an armful of little coats through the window, क्या किया उन्होंने, वो गुस्से में वो उसके कुछ कपड़े थे, किसके कपड़े, डॉग के, डॉग के जो कोट्स थे वो उन्होंने हाथ में लिया और फेंक दिया कि उसको कहाँ लेके चले गए करके, 14 दिन के लिए लेके जा रहे हैं ना, इसीलिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अरे पूरे घर वाले दुखी हो गए। सबसे ज्यादा दुखी कौन थी, मिसेस फम्फरी। फम्फरी को रोते हुए देख के उसके सर्वेंट्स जो थे, घर के अंदर के सर्वेंट स्टाफ, वो सब रोने लगे। दे ऑल वेर इन टीयर्स, सबको बहुत बुरा लग रहा था कि इसको कहाँ लेके गए करके। बट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड, ग्लांस्ड का मतलब एक जल्दी से ऐसे देख लेना, ठीक है, बहुत हरीडली देखना, जल्दी से देखना। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। पैथेटिक यानी वो लिटिल क्रिएचर का हालत बहुत ही खराब था, इसलिए वो पिटी डॉग, यानी बेसहारा, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बेसहारा जो छोटा एनिमल था, वो अपने सीट पे बैठ के सांसें लेने की ये कर रहा था। आई पैटेड द हेड, पैटेड का मतलब क्या है, सिर पे हाथ घुमाना, किसके, डॉग के। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, क्या किया, जैसे ही हाथ घुमाया डॉग ने क्या किया, बहुत ताकत लगा के उसने अपना टेल को वैग किया। और जब टेल वैग करते तो उसका मतलब क्या होता है, what does it mean, that they are becoming friendly, okay, the dog shows friendliness when it wags its tail, ठीक है। इन द सेम वे अ कैट ऑल्सो, कैट भी अपना टेल ऊपर करता है, पता है कब करता है, डू यू नो व्हेन डज इट डू, व्हेन इट इज वेरी एंग्री, जब वो बहुत गुस्से में होता है ना, तब कैट क्या करता है, अपना टेल एकदम ऊपर करता है। और डॉग्स क्या करते हैं, डॉग टेल ऊपर करते हैं पर वो वैग करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये मेरे साथ फ्रेंडली है। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मुझे मालूम है
तेरे पास इतनी ताकत नहीं है, तू बीमार है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक क्योर है, आई हैव अ मेडिसिन फॉर यू, एंड विद दिस हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन आई कैन क्योर यू। मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक वे है ऑफ ट्रीटिंग यू। तो बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी एबल टू मेक श्योर दैट यू विल बी एज हेल्दियर एज बिफोर। अभी आपका जो कंडीशन है उससे कहीं अच्छा हो सकते हो आप। सपर नहीं मालूम? सपर का मतलब क्या होता है? शाम को जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं सपर। रात को, दिन को जो खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं? लंच। हाँ, सपर एंड डिनर बोथ इट मीन्स इन द इवनिंग टाइम। ओके। और जो दिन को होता है उसको हम लोग लंच कहते हैं, सुबह जो होता है वो ब्रेकफास्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सी हियर एट द सर्जरी। सर्जरी यहाँ पे क्या होता है? सर्जरी इज द प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट्स इट्स पेशेंट। कांट डॉक्टर ट्रीट करता अपने पेशेंट को? हॉस्पिटल में, ठीक है, या उसका जो क्लिनिक होता है उसको, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्जरी। यहाँ पे सर्जरी है। नाउ द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। हाउस होल्ड यानी ये हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल में डॉग्स वाले हॉस्पिटल है। तो हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड, सर्ज्ड का मतलब क्या होता है? उसको घेर लेना, ठीक है, घेर लेना, टू सराउंड, या तो क्राउड करना। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. क्या किया? वो डॉग बहुत ज्यादा फैट था, तो ही टुक दैट डॉग एंड उसको जमीन पे, कारपेट पे रखा। और जैसे ही कारपेट पे रखा, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसे पड़ा हुआ था। इट वॉज ही वॉज जस्ट लेइंग डाउन। एंड what did he do? The other dogs sniffed, sniffing around him. Sniffing का मतलब क्या है? Dogs have the habit of sniffing, smelling. Okay, smelling. For a few seconds, decided he was an uninteresting object. और डॉग्स को क्या लगा? This is an uninteresting, ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके वहां से वो चले गए। दे इग्नोर्ड हिम, कि ये क्या चीज है, ठीक है, ऐसा करके वो छोड़ के चले गए। यूजुअली डॉग्स को या कैट्स को कुछ भी चीज मिलता है तो उन लोग लिख करके देखेंगे, फिर उसके साथ खेलते रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग भी हमारे आसपास कभी एक एक डॉग दूसरे डॉग को देखता है, तो वो पहले क्या करता है? बार्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके जरा दिखता नहीं है, उसके अलग है, इसलिए वो it starts barking. But here, what did the dogs do? Household dogs, they came, they saw, they smelled him, and उनको लगा कि ये तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है, चलो छोड़ के जाते, और ऐसा छोड़ के चले गए। I made a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. अब ये डॉग को क्या क्या दिया? एक वार्म लूस बॉक्स के अंदर उसको सोने को दिया। एक बॉक्स है और उसके अंदर थोड़े हे और वो सब रखा होगा, और उसी लूस बॉक्स के अंदर उसको सोने को रख दिया। पर ये डॉग सो पाएगा? आपको लगता है ये डॉग सो पाएगा? उसके लिए तो दो दो बेड थे। ही हैड टू बेड्स, वन बेड वॉज फॉर द डे एंड वन बेड वॉज फॉर द नाइट। और उसको ऐसे बॉक्स के अंदर सुला रहे, तो देखते क्या सोता है कि नहीं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड। क्या दिया उसको? नो
food but plenty of water. 2 दिन तक डॉक्टर ने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, कुछ भी नहीं. हम लोग को अगर 2 दिन तक खाने नहीं देंगे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी. ये डॉक्टर तो बहुत ही खराब लग रहा है मेरे को. ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या दिया, 2 दिन तक उसको एक भी खाना नहीं दिया, पर उसको क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा. फर्स्ट डे उसको जब लेके रखे तो वो कैसा पड़ा हुआ था, एकदम लेजी की तरह से एक ही जगह पे रुका पड़ा हुआ था. It did not move or do anything. But 2 days जब उसको खाना नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला, तो what did he do? He started showing interest. And on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Whimper का मतलब लिख लो, to make a sound that is out of pain. Pain में से जो sound create होता है ना, अगर डॉग्स को चोट लगता है तो उन लोग एक साउंड बनाते हैं. अगर आपने एक पत्थर लेके एक डॉग को मारा होगा तो when the dog is in pain it makes a sound, so that is known as whimper. And he started making that sound. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the hay ground and his friends. Trotted का मतलब क्या है, टू वॉक इन अ ग्रेटर स्पीड देन वॉकिंग. हम लोग जब चल के जाते हैं तो हमको एक नॉर्मल स्पीड होता है, पर हम लोग भाग भी नहीं रहे और चल भी नहीं रहे, तो थोड़ा स्पीडली वॉक करना. तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, जल्दी जल्दी चलने लगा. एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड. एनगल्फ का मतलब सराउंड कर देना, उसको सबने सराउंड कर दिया. किसने सराउंड किया, जो द ग्रे हाउंड. ग्रे हाउंड इज अ ब्रीड ऑफ अ डॉग एंड उसका नाम क्या है, जो. वो आया और उसके फ्रेंड्स आके उसको सराउंडिंग कर लिए, उसको घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम, उन्होंने क्या किया, उसको गिरा दिया और वो गोल 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 घूम रहा है. रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसके बाद उन लोग सब इंस्पेक्ट कर रहे, भाई ये कौन है. दे स्टार्टेड स्मेलिंग एंड डूइंग एवरीथिंग. उसके बाद इंस्पेक्टिंग होने के बाद व्हाट डिड द डू, द डॉग्स मूव्ड ऑफ. डॉग्स चले गए टू द गार्डन, और जैसे वो लोग चले गए, ट्रिकी ऑल्सो फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनको फॉलो करने लग गया. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फ्लैट. उसके अंदर फैट कितना था, ज्यादा था ना, तो वो सरप्लस फैट के साथ वो धीरे 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 चल के जा रहा था. Later that day, I was present at feeding time. Feeding time यानी खाना खाने के टाइम पे वो वहां पे प्रेजेंट थे. कौन प्रेजेंट थे, द डॉक्टर. I watched while Tristan slopped the food over the bowls. Slopped का मतलब क्या है, जब हम लोग खाना डालते हैं, ठीक है, बाउल के ऊपर, तो कई बार क्या होता है, जो एज होता है, एज में से खाना नीचे गिर जाता है. तो स्लॉप्ड का मतलब क्या है, द फूड फॉलिंग ऑफ द एज ऑफ दैट बाउल, उस पे से थोड़ा गिर जाना. ठीक है, फाउल into the bowls. There was an unusual headlong rush. There was a usual headlong rush followed by the sounds of the high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. ये हमारे साथ स्कूल में होता है, राइट. स्कूलों में जैसे ही रिसेस की बेल होता है, हम लोग डब्बा खोलते हैं, और जैसे ही हम लोग सब फ्रेंड्स सब आसपास सब घेर जाते हैं, भाई तू खोल तेरा. तो वो जैसे ही खोलेगा, डब्बा खुलने की देर होती है, उसके पहले सबका हाथ अंदर चला जाता है, मेरे को ज्यादा मिलेगा करके. तो यहाँ पे डॉग्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था. द डॉग्स वेर ऑल्सो हैविंग द सेम थिंग. द फूड वॉज गिवन टू देम, and when the food was given to them in a bowl, all the dogs came together. और सब कंपटीशन हो गया था यहाँ पे
कि कौन सबसे ज्यादा खाएगा, और फटाफट फटाफट लोग, जिसका मुंह बड़ा होगा वो ज्यादा खाएगा। तो वैसा एक कंपटीशन था यहाँ पे। ट्रिस्टेन, ट्रिस्टेन का मतलब है वो नाम है उसका, उसके साथ जो काम करता है ना, हेरियोट के साथ जो काम करता है, वो हेरियोट का जो खाना देने वाला था उसका नाम है ट्रिस्टेन। धीरज, समझ में आ गया? When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. क्या हुआ जब सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, ट्रिकी आया, वॉक लिया, वो शाइनिंग बाउल्स को देखा और लिक करने लगा। डॉग्स हैव द हैबिट ऑफ लिकिंग, नो, तो यहाँ पे लिक करने लगा कैजुअली इनसाइड, और दोनों बाउल के अंदर बाहर सब लिक करने लगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिला होगा या बहुत कम मिला होगा, तो वो आके लिक करने लगा। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him. उसको एक एक्स्ट्रा बाउल रखा कि भाई तेरे लिए, तू अभी स्पीड में कम है, ये सारे डॉग्स के बीच में तू हार जाएगा, तेरे को कुछ खाने को मिलेगा नहीं। वो सोच के डॉक्टर ने वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, ट्रिस्टैन ने एक एक्स्ट्रा बाउल उसको दे दिया कि भाई ये तेरे लिए है। I was pleased and I was pleased to see him jostling his way towards it. और दूसरे दिन जब उसको मिला वो खुश हो गया, क्योंकि और वो खाना खाने लगा। From then on his progress was rapid. तब से उसका प्रोग्रेस रैपिड होने लगा, वो चेंजेस आने लगे। No medicinal treatment of any kind, उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, ना इंजेक्शंस देने पड़े, ना ऑपरेशन करना पड़ा, ना कैप्सूल्स या कोई ड्रग्स देने पड़े। सिर्फ उसको क्या किया था, 2 दिन भूखा रखा और दोनों दिन उसको बहुत सारा पानी दिया। तीसरे दिन वो खाना खाने आया, पर उस कंपटीशन इतना था कि उसको खाना नहीं मिला। फिर चौथे दिन से उसको खाना खाने को मिला, तो ही वॉज हैप्पी, और इससे वो थोड़ा और प्लेफुल होने लगा। मीन्स उसके उसके प्रॉब्लम्स थोड़े धीरे धीरे, चेंजेस जो थे वो चेंज होने लगे। बट ऑल डे ही रैन अबाउट द डॉग्स, डॉग्स के साथ भागता ही रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है कि कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, भागना, स्ट्रगल, इधर से उधर भागना, वहां से वापस इधर आना। डॉग्स लोग की हैबिट होती है ना, कहीं एक जगह पे ढंग से बैठेंगे नहीं, एक बॉल आया तो बॉल के पीछे भाग जाना, या कोई आया तो उसके पीछे भागना। तो फ्रेंडली स्क्रिम, जो कंफ्यूज्ड स्टेट था उसको कहते हैं स्क्रिमेजेस। He discovered the joy of being bowed over, trampled and squashed every few minutes. बाउल्ड का मतलब क्या है, उसको अच्छा लगता था, दूसरे कुत्ते लोग उसको क्या करते थे, गिरा देते थे और उसको रोल करते थे, तो पलटी मार के ऐसा रोल करना, ठीक है। ट्रैम्पल यानी ऐसे हेवीली, टू वॉक हेवीली। एंड एंड स्क्वैश्ड, स्क्वैश का मतलब क्या है, उसको ऐसा ऐसा गिरा देना और उसको ऐसा चप्पट कर देना, ठीक है। तो ही लव्ड ऑल दिस थिंग्स, डॉग्स कमिंग एंड फाइटिंग विथ हिम, और वो उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at the meal times, hunting rats in the old hen house at the night. अब क्या करने लगा, he became more friendly, he loved the company of all the dogs, and वो एक टाइगर की तरह, शेर अभी उसके लिए स्पेशल बाउल नहीं रखते थे, अब वो क्या करता था, लड़ता था उसी बाउल के अंदर जहां पे सब खाना खाते थे, उसी बाउल के अंदर वो टाइगर की तरह लड़के उसका शेर छीन लेता था, और वो रैट्स के पीछे हंट करता था, कहां पे, ओल्ड हाउस इन द नाइट,
हैन हाउस, यानी जहाँ पे हैंस रखते हैं वो हैन हाउस होता है, उसके अंदर वो चूहे को पकड़ने जाता था. He had never had such a time in his life. कभी उसकी ऐसी जिंदगी नहीं थी. ये उसको बहुत अच्छा लगता था. All the while, Mrs. Humphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. मिसिस पंफरी का चैन, वो बिल्कुल बेचैन थी, तो बार बार कॉल करती थी. और कैसे? रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, कम से कम 12 बार वो एक दिन में कॉल करती थी पूछने के लिए, अरे मेरे कुत्ते को कैसा है, ट्रिकी कैसा है, उसने खाना खाया पिया, ऐसा सब पूछने के लिए. और डॉक्टर क्या करता था? आई डॉज्ड. डॉज मीन्स ही वुड अवॉइड, वो अवॉइड कर देते थे द क्वेश्चंस अबाउट वेदर his questions are being turned regularly or his coat worn accordingly to the weather. क्या उसकी मिसिस पम्परी कॉल करके कहती है, तुमने उसका कुशन चेंज किया, तुमने उसके कपड़े जो है वो वेदर के हिसाब से पहना रहे हो. तो क्या ये सारे क्वेश्चंस क्या कर देता था डॉक्टर? ही वुड अवॉइड इट. I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. उन्होंने बाकी सब कुछ चीज का जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो इतना बताया कि वो डॉग आउट ऑफ डेंजर था. एंड कन्वेल्सलिंग का मतलब वो रिकवर कर रहा है, अपनी हेल्थ रिकवर कर रहा है, फटाफट रिकवर कर रहा है. he is gaining back his strength and he is recovering from his problem. ठीक है. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens a time, to build Stricky's strength. और जैसे ही उनको पता चला कि उसके हेल्थ ठीक हो रहा है, वो इम्यून हो रहा है, उसके पास ताकत हो रहा है, तो मिसेस पम्परी क्या करने लगी? एग्स लेके आने लगी. और 2 डजन, एक टाइम के लिए 2 डजन एग उसके लिए, फम्फरी के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 डेक्स 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. अब डॉक्टर और उसके पार्टनर जो था ट्रिस्टैन, उन लोग क्या करते थे? वो एग उन लोग खा लेते थे. एग्स किसके लिए आता था? एग्स डॉग के लिए आता था, ट्रिकी के लिए. पर वो एग्स कौन खाता था? पार्टनर एंड आई, दैट इज उनका जो पार्टनर है और जो ऑथर है, उन लोग ही क्या करते थे? वो एग्स को खा लेते थे ब्रेकफास्ट में. बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, उसके बाद क्या आने लगा? वाइन आने लगा. किसके लिए वाइन? डॉग के लिए. द रियल पॉसिबिलिटीज एंड द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉ ऑन द हाउस होल्ड. अब इनको लगा, अरे ये क्या आ रहा है, हम लोग डॉग को ठीक करने की सोच रहे हैं और यहाँ पे वापस खाना वापस शुरू हो गया इसका. यानी वो आउट ऑफ डेंजर है, इसलिए अभी वापस पहले जैसे खाना आने शुरू हो गया. नाउ इट वॉज टू एनरिच, किसके लिए था? टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, उसका ब्लड को एनरिच करने के लिए. लंच बिकेम सेरिमोनियल ओकेशन with 2 glasses of wine before and several during the meal. 2 वाइन, ये सब डॉग के लिए हाथ आने लगा कि वाइन आता था. ठीक है, अब खाना उसका सेरिमोनियल था, यानी एक फीस्ट की तरह उसका खाना था. एंड दे वर एंजॉइंग. लेट्स सी. We could hardly believe it when the brandy भी आने लगा. Brandy is that whiskey हम लोग बोलते हैं ना, वो came to the final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled and frequently drunk. क्या हुआ? ये सब कुछ ट्रिकी के लिए आता था, पर ये सब कौन एंजॉय करता था? वाइन, एग्स, ब्रांडी, ये सब कौन एंजॉय करता था? ये सब कुछ ये 2 जन, डॉक्टर और उसका पार्टनर, ये लोग एंजॉय करते थे.
देयर वे डेज ऑफ डीप कंटेंट. कंटेंट का यहाँ पे मतलब है बहुत पीसफुल नाइट्स या बहुत पीसफुल हैप्पीनेस देने वाला टाइम था. ऐसे दिन भी थे. स्टार्टिंग वेल विथ एन एक्स्ट्रा एग in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious around with fire with the brandy. यानी उनके दिन कैसे थे? बहुत ही अच्छे दिन थे, बहुत खुशी वाले दिन थे. डॉक्टर और उसका पार्टनर को घर से कुछ लेके आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो ट्रिकी था उसका जो खाना आता था ये कौन खाता था? ये दोनों मिलके खा लेते थे. तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, लंच भी अच्छा होता था, शाम को ब्रांडी भी उनको पीने को मिलता था. तो इन लोग बहुत ज्यादा खुश थे. और उनको एक टेम्पटेशंस भी आया. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट. उसको परमानेंट गेस्ट बना के रखते हैं. ये तो 14 दिन के लिए आया है, पर यहाँ पे इन्होंने सोचा कि हम लोग इसको, एक टेम्पटेशन अंदर आया कि इसको हम लोग परमानेंट बना देंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. हमको 2 टाइम खाने को मिलेगा, ब्रांडी मिलेगा, वाइन मिलेगा, सब कुछ हमको मिलेगा. तो उन लोग बहुत खुश हो गए. बट आई न्यू मिसेस फम्फ्री वॉज सफरिंग. क्यों सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट? क्यों मिसेस सफरिंग वॉज सफरिंग? किससे सफर कर रही थी? उसको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने डॉग से वो बहुत दूर थी. एंड शी वॉज नॉट एबल टू सी द डॉग. तो इसीलिए व्हाट हैपेंड, ही फेल्ट कंपेल्ड. उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन करके बता देना पड़ेगा. ही फेल्ट कंपेल्ड एंड टोल्ड हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड. वो ठीक हो चुका है. एंड ठीक हो चुका, इसका मतलब क्या होगा? तो वो घर वाले आ जाएंगे, ठीक है, उसको लेने के लिए. विद इन मिनट्स में ही क्या हुआ? 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 feet वाली बड़ी ब्लैक कलर की कार, मेटल, ब्लैक मेटल, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. यानी कौन सी गाड़ी हो सकती है? सोच सकते हो, 30 मीटर फीट लंबी लिमोसिन जैसी गाड़ी हो सकती है, बड़ी वाली कार. ठीक है, उतनी बड़ी कार आती है. और वो सर्जरी के बाद मिनट्स, जैसे उन्होंने ऐसा कॉल करके हाँ ठीक हो गया, तुरंत ही वहां से लोग आ गए. द शॉफर. शॉफर यानी जो ड्राइवर होता है, प्राइवेट व्हीकल्स का जो ड्राइवर होता है उसको कहते हैं. उन्होंने डोर ओपन किया. आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. वो अपने कार के अंदर ही बैठी हुई थी. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? वो बहुत टेंस्ड थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी. सच बोलना. वो बाहर भी नहीं निकल रही थी. वो हैरियट को पूछ रहे थे कि सच्ची वो ठीक हो गया है ना, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना. ही she wanted to she asked about all these things. Next. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. आप कार के अंदर ही बैठे रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मैं ही डॉग को लेके आता हूं. I'll bring the dog. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around. Hurtling क्या यानी भागना. Around and round in the lawn and in the midst. उन लोग बाहर गोल 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 घूम रहे थे. And the lawn and in their midst, ears flapping, tails waving, was the little golden figure of Tricky. यानी ट्रिकी भी वही एंजॉय कर रहा था, वो भाग रहा था. इन 2 weeks he had been transformed in the लीथ. लीथ का मतलब है थिन, पतला हो गया था. पहले कैसा था? सॉसेज की तरह था, है ना. सॉसेज यानी हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि उसका पूरा बॉडी स्वेलन बॉडी था, पर अब कैसा हो गया था? लीथ यानी थिन हो गया था. हार्ड मसल्ड एनिमल, मसल्स एकदम हार्ड थे. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the
ग्राउंड। तो अब कैसा था, एकदम पतला हट्टा कट्टा बन गया था और वो 2 वीक के अंदर ऐसा मस्त तैयार हो गया था। I carried him back along the passage to the front door of the chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, यहाँ पे देखो कार बड़ी लंबी वाली कार है और उसको ये उन्होंने डॉग को लेके आए। कौन लेके आया? मिस्टर हैरियट। हैरियट ब्रॉट द डॉग। He took off from my arms the mistress and in tremendous leap sailed into Mrs. Pumphrey's lap. वो उस हाथ में था, वहां से उसने छलांग लगाई किधर? फम्फरी के लैप में। शी गेव अ स्टार्टल्ड ooh and then had to defend herself as he swarmed over her licking her face and barking. डॉग्स की ये हैबिट है, they after a period of time when you meet your owners, the dog starts licking over all over the face everywhere, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, इसीलिए। During this excitement I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coat, bowls, none of which we had been used. उन्होंने एक भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। उसको वो छोटे से बॉक्स में रखा था और वो बॉक्स में ही रहता था और कोई भी चीज इस्तेमाल, तो वो उन्होंने हेल्प किया शॉफर को सारी चीजें लेके आने के लिए। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled, उसके आंख भर गए। किसके? फम्फरी के। क्यों? ये मरने वाला था डॉग, पर वो मरा नहीं और आज वो हेल्थी है। सो दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड हाउ मच फम्फरी इज लविंग हर डॉग ट्रिकी। वो बहुत ज्यादा अटैच्ड थी अपने डॉग के साथ। Oh, Mr. Harriot, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of the surgery. ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक विन है, किसका? सर्जरी का, यानी हॉस्पिटल का, कि वो वापस आ गया और वो बहुत ज्यादा ठीक है। ओके, अंडरस्टूड? एनीवन हैविंग डाउट्स इन दिस चैप्टर? Okay, so for today's class, this much. And I guess some of the students are having 19 chapter. I will have a word. Last time also I told you uh, uh, this 19 chapter of 19 chapter of SS. uh, I will have a message with sir, and then I'll arrange a class for everyone. Okay? हाँ, और क्या बोल रहे हो? ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग? बेसहारा हो जाना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डर लगता है ना, तो ट्रेम्बल होते हैं ना, तो वो है ट्रेम्बल्ड। ओके, सो शी वॉज ट्रेम्बलिंग। स्वार्म करने जाना मतलब दस, व्हाट डज द बीज टू? दे स्वार्म अराउंड, पूरा सब पे आना। तो व्हाट डिड ही हियर शी डिड, and then had to defend her as he swarmed over her licking her face। यानी वो डॉग क्या किया? the dog start coming to the face and started licking everywhere, तो वो that is swarming around। ठीक है, एक साथ अटैक करना, स्वॉर्म करना। ओके, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क पीडीएफ में नहीं दोगे क्या सर? मैं सर से बात करके मैं भिजवाता हूँ। ओके, ओके।
Anybody who wants to ask anything?